Hello everyone. Today we are going to learn the next point of the chapter number 6, and that is part 3, transportation system from grade 10 science. So in this video we have to learn what is transportation in human and what is transportation in plants. So shall we move ahead? So if we are talking about transportation in humans, then the main component for the transportation, and that is blood. So what is blood? So first of all, blood is a fluid and a connective tissue that circulate in a closed system of blood vessels. मतलब कि blood is nothing else but a type of tissue, but that one is a fluid tissue कि जो क्या काम करती है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने का काम करती है in a blood vessels. Then what are the components of blood? So the components of bloods are plasma, blood corpuscles and platelets. These three are the components of blood. That by these three things blood is made up of. That means plasma, blood corpuscles, that is RBC and WBC, and the last one is platelets. Then you have to learn all three one by one. So first of all we are starting with plasma. That what is plasma? So plasma is a straw colored liquid with 92% of water. As like the cell have cytoplasm, at the same way your blood have a plasma that is mainly made up of water. In that 92% are water. Now it transport food, CO2 and nitrogenous waste. So this one is transport in your body is food, CO2 and nitrogenous waste. These three is transported by blood. Then so this is all about blood. Now we learn some more thing about blood, that what is RBC, what is WBC and what is platelets, because already plasma we will complete. So first we are starting with red blood cells, or else you can say red blood corpuscles. So red blood cell is iron containing respiratory pigment hemoglobin. As you all know that red blood cell, this name is given because that cell have red in color, that's why they are known as red blood cells. So ये जो red color है वो किस वजह से है? तो that red blood cells containing one pigment, and the name of that pigment is hemoglobin, and because of hemoglobin the pigment have a red color. So that's why it is known as red blood cell. Now what is transportation in? And that is हेल्प इन अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. कि क्या होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल है वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइट ब्लड सेल्स. So ingest and destroy bacteria. That what is white blood cell work for? White blood cell working as a defensive army of your body. That means ingest and destroy bacteria. कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंटीजेंस आ रहे हैं उस एंटीजेंस को मारने का काम और आपकी बॉडी को सिक्योर्ड करने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं. देन प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ infection. If your body have any type of infection, then the white blood cell are come in action and they give protection, and they'll do safeness for yourself, and they'll work as a army of your body. Now the next one, what is platelets? Platelets help in the clotting of blood. If you have any injury while any of the accident, so at that time of injury your bloods will flow, but with the help of platelet your blood will clot and you can stop the flowing of blood in your body. Now after learning what is blood, you have to learn what is the function of blood. So there are the four main function of the blood, and that is mentioned in a red in color. So the first one is transport of respiratory gases, then the second one is transport of nutrient, then third one is transport of waste products, and the fourth one is defense against infection. So now we have to learn one by one. So first we are starting with transport of respiratory gases. So the first one is oxygen from lung to सेल. कि गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड किस तरीके से हेल्प करेगा? तो क्या करेगा? ऑक्सीजन को लंग्स में से सेल में ले जाने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब कि ये जो ब्लड है, आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से क्या होगा? ये ऑक्सीजन कैरी होगा और आपकी बॉडी पे पहुंचेगा, पूरे अलग अलग सेल्स तक पहुंचेगा. फ्रॉम दैट carbon dioxide from tissue to lungs, and at the same way
कि आपकी बॉडी के अंदर जो CO2 वाला ब्लड है वो CO2 वाला ब्लड हर एक सेल से इकट्ठा करके उसको वापस लंग्स तक पहुंचाने का काम ब्लड करेगा। बट ब्लड के भी अलग अलग दो पोर्शन, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग अलग सेल्स तक पहुंचाएगा, और जो प्लाज्मा है वो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो मिलके यहाँ तक पहुंचाएगा, कहाँ पे, लंग्स तक। डन। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। नाउ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा? सो ऑलरेडी यू लर्न इन अ पार्ट 1 वीडियो, दैट इज इन अ डाइजेशन वीडियो, दैट योर स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ finger like projection and that is known as villi. And that villi is connected to a blood vessels. From that small intestine your food particles are absorbed, and that food particles is directly liberated in a blood vessel. So from that the digested food are absorbed by the blood. Then the third one is transport of waste product, that your blood helps in the transportation of the waste product, and that waste products are urea, uric acid, etc. And these materials are transported to kidney for the excretion. And the last one and the fourth one is defense against infection. This is the role of WBC, that WBC digest and engulfs bacteria and produce antibodies. कि ये आपके white blood cells का काम है. As I already told you that WBC works as a defending army of your body. So at the same way WBC works, that if any of the antigen and any of the pathogens come in your body, then WBC work as a fighting army, and they'll recover your body and they'll protect your body from that virus or else that pathogen or else that antigen. Then so these are the functions of blood. Now we will learn the human heart structure, that what is human heart. Already we learn what is blood, कि भाई blood क्या है, but ये blood अब circulate कैसे होता है बॉडी के अंदर, प्योर कैसे होता है, ऑक्सीजन वाला कहाँ से हुआ, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से हुआ। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन हार्ट को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। सो व्हाट इज ह्यूमन हार्ट, लेट वी अंडरस्टैंड। सो here is an image of human heart. Here you can say so many portions are there, and this image is colorless image, so you can easily identify it. Now we will move on a theory portion. That first one is muscular organ. If you are talking about heart, that one, the human heart is a muscular organ and which is made up of cardiac muscles. कि अगर आपको human heart का कोई पूछ ले, that human heart is a muscular organ and which is made up of which muscles? So that muscles is cardiac muscles. That human heart is made up by cardiac muscles. Now located in the middle of the chest and tilts towards the left. कि अब इसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो ये आपका जो हार्ट है दैट वन इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट. कि भाई आपका जो हार्ट है वो आपकी जो चेस्ट है उसके सेंटर पोर्शन में है, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे क्या हुआ है, टिल्ट हुआ है. टिल्ट हुआ मतलब थोड़ा सा वहाँ पे स्लांटिंग पोजीशन पे, कि उस साइड झुका हुआ है. देन तो ये तो थी उसकी पोजीशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द हार्ट पोर्शंस, कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है. सो योर हार्ट हैव 4 chambers and that 4 chambers are 2 upper chambers and 2 lower chambers. Got it? कि भाई हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होगी, 2 ऊपर की साइड और 2 नीचे की साइड. देन हियर यू कैन सी 1 and 2 upper side and 2 lower side. So this one is a 4 chambers of heart. That one is the first, this one is second, this one is third, and this one is fourth. So this one is a 4 chamber of your heart. Now this chamber is known as different names. That if we are talking about the upper portion, that one, this one and this one. So if we are talking about this side, so the upper side is known as atria and the lower side is known as ventricles. So this one is in a left side, so that are left atrium, and this one is on right side, so that's why it is right atrium. Got it? This one is on left, so that's why left atrium, and this one is right, so it is right atrium. At the same way, the lower portion, the lower left side portion is known as left ventricle, and the lower right side portion is known as right ventricles. Got it? What I'm trying to say now, that is about upper chambers and lower chambers. You already know that the name of the upper chamber and lower chamber, that is atria and ventricles. But now the main point, the upper chambers are thin walled chambers. कि भाई उनकी जो
वॉल होगी, जो मसल वॉल, वो क्या होगी, थीन होगी, पतली होगी. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोअर वन, तो लोअर वन की वॉल्स क्या होगी, थिक होगी. एज यू कैन से हियर, ये जो आपको जो सारी वॉल्स दिख रही है इसकी, ये सारी वॉल्स क्या है, पतली वॉल्स है. बट एट ए सेम वे अगर इसी चीज़ को आप नीचे की साइड से कंपेयर करो, तो नीचे की ये जो सारी वॉल्स हैं वो एकदम थिक वॉल है. तो ये यू कैन गेट इट कि जो ऊपर की साइड है वो थीन है, बट जो नीचे की साइड है वो थिक है. डन. Now, after learning the structure, you have to learn how heart works. So, cardiac cycle consists of one heartbeat. कि आपकी ये जो cardiac cycle है, जिसके थ्रू आप हार्ट बीट, आपकी जो ब्लड पंप होता है, that is consist of heartbeat. Now, one cycle of contraction and relaxation of cardiac muscles. If you are not getting the first point, that is cardiac cycle consists of one heartbeat. कि भाई cardiac cycle का मतलब एक हार्ट बीट है. इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ. that one cycle of contraction and relaxation of cardiac muscle. कि आप जब एक बार ऐसा इनहेलेशन करते हो, तो इनहेलेशन करने के टाइम पे और फिर एक्सहेलेशन करने के टाइम पे आपके स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि ये आपके हार्ट के अंदर भी हो रही है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस है, उसके थ्रू आपकी हार्ट बीट चलती है. तो ये पूरी साइकिल है, दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन साइकिल. सो इसके थ्रू आपका हार्ट वर्क करता है. हियर इज अ फ्लो चार्ट डायग्राम दैट इज लाइक सुपीरियर एंड इंटरफियर वेना कैव्स क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लाएगी. राइट एट्रियम में से वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स में से वेन में जाएगा, वेन में से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में से वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से ऑरोटा एंड वहाँ से बॉडी के अदर पार्ट्स. मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए अब मैं आपको मार्किंग के साथ समझाती हूँ कि भाई ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि भाई आपकी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब CO2 वाला ब्लड है कि जो प्योर नहीं है. तो ये हो गया वेना केव, कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स होगी वो वेन क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी. कि भाई जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब अनप्योर ब्लड है, उस अनप्योर ब्लड को इकट्ठा करेगी. अब उस अनप्योर ब्लड को वो कहाँ पे लाएगी, राइट एट्रियम में, कि वो अनप्योर ब्लड को वो राइट एट्रियम में ला देगी. अब राइट एट्रियम में आने के बाद वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो राइट एट्रियम में से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर. गॉट माई पॉइंट, कि भाई राइट एट्रियम में से ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर. अब राइट वेंट्रिकल में आ गया ये ब्लड भी कौन सा ब्लड है, अनप्योर ब्लड है. डन. अब यहाँ से वो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, कि राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी में गया. अब पल्मोनरी आर्टरी का वर्क क्या हो गया, कि भाई अनप्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी करेगी. डन. कि भाई राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाया और पल्मोनरी आर्टरी ने उसको लंग्स में पहुंचाया. अब लंग्स के अंदर ब्लड पहुंच गया. अब फिर भी ये ब्लड कौन सा है, दैट वन इज अनप्योर ब्लड. डन. कि ये ब्लड कौन सा होगा, अनप्योर होगा. अब इस अनप्योर ब्लड का क्या करेंगे, तो लंग्स क्या करेगा, इस अनप्योर ब्लड को कन्वर्ट करेगा. किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, ऑलरेडी हम रेस्पिरेशन में देख चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम. ये एक्सचेंज होता है एल्वोली के अंदर. एल्वोली के अंदर क्या होगा, गैस की एक्सचेंज होगी. तो लंग्स की एल्वोली के अंदर ये गैसेस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे. कि जो CO2 था अनप्योर ब्लड के अंदर वो रिमूव हो जाएगा, और उस अनप्योर ब्लड के अंदर वो ब्लड में से CO2 निकल के वो प्योर हो गया. CO2 निकल गया और ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके अंदर एंटर करेगा, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा. तो ये लंग्स के अंदर ब्लड प्योर हो गया. अब वहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा. बट ये ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. अब यहाँ से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल में से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो जाएगा अरोटा के अंदर, और एक बार अरोटा में पहुँच गया उसके बाद वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच जाएगा और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल जाएगा.
सो हियर याद रखने की चीज़ें कितनी है कि जितनी भी आर्टरीज है वो अनप्योर ब्लड कैरी करेगी और जितनी भी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड कैरी करेगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई आर्टरी हुई तो अनप्योर ब्लड और वेन हुई तो प्योर ब्लड। अगर ये जो वेना कैव है आपकी वो पूरे बॉडी से अनप्योर ब्लड को इकट्ठा करेगी और आपकी जो अरोटा है वो पूरे बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को पहुंचाएगी। डन। सो इतना आप लोग के लिए डन है हार्ट की वर्किंग समझने के लिए। नाउ ये तो हो गई ह्यूमन हार्ट की बात, बट अगर हम दूसरे एनिमल्स में बात कर ले कि हार्ट किस तरीके का होता है तो अब हम ये जानते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे? तो वी विल टॉक अबाउट बर्ड्स, वी विल टॉक अबाउट एम्फिबियंस एंड विल टॉक अबाउट फिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ बर्ड्स। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कि भाई इनके अंदर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट हो जाएगा। कि भाई ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बट उसके बाद क्या होगा, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर हायर एनर्जी एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। कि भाई उनको क्या होगा, ऑक्सीजन का एक सफिशिएंट सप्लाई चाहिए होता है, किस लिए कि उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उनको फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये उनकी बॉडी की सिस्टम हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एम्फिबियंस। Now, amphibians have a 3-chamber heart which is not separated completely. तो amphibians की बात कर लो तो amphibians के अंदर क्या होगा, उनकी हार्ट में सिर्फ 3 पार्ट हो गए। जैसे ह्यूमन हार्ट वो 4 चैम्बर्स, बट एम्फिबियंस हैव जस्ट 3 चैम्बर हार्ट। और ये 3 चैम्बर्स भी पूरी तरह सेपरेट नहीं होते, दे आर इंटरकनेक्टेड। नाउ बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ टेम्परेचर। अब इनके सिर्फ 3 पार्टेड हार्ट है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा, सीजन के साथ और एनवायरनमेंट के साथ वेरी होगा। कि भाई जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, सस्टेन हो जाएंगे। नाउ द लास्ट पोर्शन इज फिश। कि भाई फिश के अंदर हार्ट किस तरीके से होगा। नाउ फिश हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट। की अगर आप फिश की बात कर लो तो फिश की बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट में 2 ही चैम्बर होगी एंड दैट इज ऑक्सीजनेटेड इन गिल्स एंड पम्प्स इन द हार्ट ओनली वंस। अब इनमें भी क्या होगा कि उनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो गिल्स के अंदर होता है, क्योंकि फिश क्या करती है, गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। तो गिल्स से उन्होंने जो रेस्पिरेशन किया तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो ऑक्सीजन वाला जो एयर है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, हार्ट के अंदर पंप होगी और वहाँ पे ही ब्लड का सर्कुलेशन होगा। बट ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार होगी। सो दिस वन इज अ हार्ट इन अदर एनिमल्स। की भाई अलग अलग एनिमल्स के अंदर हार्ट किस तरीके से होता है। नाउ द अगेन वर्किंग ऑफ हार्ट। कि भाई वर्किंग ऑफ हार्ट इन द सेंस कि हार्ट किस तरीके से वर्क करेगा, वो वाली वर्किंग नहीं, बिकॉज वी ऑलरेडी कंप्लीट दैट वन इज इन अ एप्लीकेशन फॉर्म। कि भाई कहाँ कहाँ पे हार्ट की वर्किंग हो सकती है, कहाँ कहाँ पे उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। सो फर्स्ट वन इज डबल सर्कुलेशन, सेकेंड वन इज पेस मेकर एंड द थर्ड वन इज ECG, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। की यहाँ पे हार्ट की वर्किंग है। नाउ द फर्स्ट वन इज डबल सर्कुलेशन, दैट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। कि अगर आप हार्ट की ब्लड की बात कर लो तो ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन कंप्लीट वन बॉडी साइकिल। कि आपकी बॉडी के अंदर एक पूरी सर्कुलेशन सिस्टम कंप्लीट करनी होगी तो आपके हार्ट में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड क्या होगा, 2 बार हार्ट के अंदर एंटर करेगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। कि भाई एक साइकिल के लिए वो 2 बार आ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ डबल सर्कुलेशन। डन। नाउ व्हाट इज पेस मेकर। स्मॉल मास ऑफ मसल सेल्स इन अ राइट एट्रियम वॉल्स नियर ओपनिंग ऑफ वेना केव। कि पेस मेकर क्या होता है, कि आपकी जो वेना केव है, ऑलरेडी मैंने बता दिया वेना केव क्या काम करेगी, आपकी बॉडी में से अनप्योर ब्लड को इकट्ठा करके राइट एट्रियम तक पहुंचाने का काम करेगी। तो ये जो वेना केव की ओपनिंग होगी, वेना केव की ओपनिंग के पास एक छोटा सा मसल सेल्स हम प्लेस कर देते हैं, दैट इज नोन एज पेस मेकर। डन। एंड दैट इज नोन एज सिनोएट्रियल नोड। कि भाई ये उस नोड पे, उस
जॉइंट पे उसको प्लेस किया जाता है। इनिशिएट एंड मेंटेन्स हार्ट बीटिंग। अब उसको प्लेस करने की ज़रूरत क्या है, तो होता है कि कभी कभी हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट वर्क नहीं कर पाता, तो क्या करना पड़ता है, ऐसे पेस मेकर्स रखने पड़ते हैं, बिकॉज हार्ट को मेंटेनली वर्क करवाने के लिए कि हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, उनका मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पेस मेकर को इंजेक्ट करना पड़ता है। नाउ इन केस ऑफ इट्स फेलियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेस मेकर इज इम्प्लांटेड, कि अगर हार्ट का फेलियर हो रहा है तो हार्ट के फेलियर को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेस मेकर को इंजेक्ट करना पड़ता है। डन। नाउ द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज ECG, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एज वी ऑल सी दैट व्हाट इज ECG, दैट अ zigzag line in a doctor's ECG, that is known as electrocardiogram. That zigzag line is nothing else but the rate of your heartbeat. So graphical representation of the electric changes during the heartbeat, कि वो जो आपको zigzag patterns दिखती है, that zigzag pattern is nothing else but a electrical impulses or else you can say electrical changes that comes during your heartbeat, कि भाई आपकी heartbeat के थ्रू जितने भी impulses आते हैं, electrical impulses, वो आपको ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखता है, दैट इज ECG। रिकॉर्ड्स रेट एंड द रिदम ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो आपकी हार्ट बीट की रेट को और आपकी हार्ट बीट के रिदम को इलेक्ट्रोड की हेल्प से मेजर करता है। तो ECG लेने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसे अलग अलग ऐसे स्टैंक जैसे लगाते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपकी सिस्टम, आपकी हार्ट की सिस्टम को वो मॉनिटर करेंगे और वो मॉनिटर करके सीधा ग्राफिक्स आपको वो ECG के ऊपर दिखेंगे। सो दिस वन इज अ वर्किंग ऑफ हार्ट। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, सो दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन। सो नाउ व्हाट इज आर्टरी एंड व्हाट इज वेन? सो आर्टरी हैव अ थिक वॉल, एट द सेम वे वेन हैव अ थिन वॉल। आर्टरी की बात करें तो दे आर अ डिप सीटेड, और वेन्स दैट इज सुपरफिशियल। डिप सीटेड मतलब आपकी स्किन के ऊपर आपको कहीं से भी जितनी भी दिखती है वो आर्टरीज नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज स्किन के बहुत नीचे होती है, आपको जो दिखती है दैट इज वेन। तो आर्टरी क्या होगी, बहुत ही डीप होगी, और आपकी जो वेन है वो क्या होगी, आपको दिख पाएगी। डन। नाउ आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी क्या करेगी, हार्ट में से ब्लड दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगी, दैट मीन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। कि ये कौन सा ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। बट अगर आप वेन की बात कर लो तो वेन क्या करेगी, कैरी ब्लड टू द हार्ट, कि भाई अलग अलग बॉडी पार्ट्स से ब्लड को इकट्ठा करेगी और हार्ट में पहुंचाएगी। तो अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा हुआ, दैट मीन्स कि ये आपका अनप्योर ब्लड हुआ। डन। इसकी थिक वॉल, इसकी थिन वॉल, ये बहुत ही डीप होती है, ये आपकी स्किन के ऊपर से आपको दिख सकती है। ये प्योर ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट पे पहुंचाती है, ये अनप्योर ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक पहुंचाती है। नाउ इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। अब आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होते और वेन के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब वाल्व क्या है, कि भाई एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड की एंट्री करवाने के लिए वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाल्व सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते। I hope you all have got it that how many type of blood vessels are there. So now we move ahead. Now we learn what is capillaries. After learning arteries and vein, you have to learn what is capillaries. So arteries divide repeatedly to form very thin wall vessels called capillaries. कि आपकी जो arteries है, कि arteries मतलब प्योर ब्लड को अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करती है, वो ये जो आपकी आर्टरीज है वो बहुत ही पतली पतली वॉल्स वाली वेसल्स के अंदर डिवाइड होती है, एंड दैट वेसल्स इज नथिंग एल्स बट योर कैपिलरीज। देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपकी आर्टरी थीन वॉल वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, और वो थीन वॉल्ड वेसल्स क्या नाम से जानी जाएगी, कैपिलरीज के नाम से। सो इन शॉर्ट कैपिलरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, दैट इज अ प्योर ब्लड एट अ टाइम व्हेन इट पास द ब्लड टू बॉडी पार्ट्स। Now, exchange of material between blood and cell
टेक्स प्लेस अक्रॉस द वॉल। अब ये वर्क क्या करेगी, तो मटेरियल के एक्सचेंज करने का काम, कि ब्लड में और आपके सेल्स के, ब्लड में से अलग अलग सेल्स तक मटेरियल पास करवाने का काम किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। देन नाउ कैपिलरीज देन जॉइंट टू फॉर्म वेन्स। अब ये कैपिलरीज क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी, और उस कैपिलरीज से क्या बन जाएगी, वेन बन जाएगी। तो वेन बन के जितना भी वेस्ट आया है ऑक्सीजन वाला, कि जो अनप्योर ब्लड है, वो पूरे अनप्योर ब्लड में से वो कैपिलरीज जॉइंट होके वेन बन गई, और वो वेन फिर कहाँ पे हो जाएगी, ह्यूमन हार्ट में वापस पहुंच जाएगी अनप्योर ब्लड में, अनप्योर ब्लड को लेके इन अ फॉर्म ऑफ वेना केव। डन, सो एट दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल कंप्लीट. Now we will talk about transportation in plant. Done.